Good morning, children. Welcome to your GK class. Today we will learn about weather. Okay. So this chapter's name is Weather Report. See, you can see the heading here. This is the weather report. Okay. Now let's see what will we learn here. Okay. हम यहाँ पे क्या पढ़ें? Now see, identify the weather icons and help Novi to understand the weekly weather report. Now here आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है करने के लिए? यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेदर आइकन्स. ओके, ये जो है ये क्या है? ये सारे दीज आर दी वेदर आइकन्स. ओके, सो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और नोवी को अंडरस्टैंड करना है. वीकली नोवी को हेल्प करना है टू अंडरस्टैंड द वीकली वेदर रिपोर्ट कि कैसा है. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग. Okay, so what is the question asking you? We will read the question first. It is very hot today as sun is shining brightly. It is dash today. Now see, look here. The sun is yellow. Yes, it is shining very brightly. Yes. So इसका मतलब यहाँ पे क्या है? It is a sunny day today. How will you write sunny? S-U-N-N-Y. That is a sunny day today. Okay. So read the question. It is very hot today as the sun is shining brightly. It is sunny today. Okay. धूप बहुत है ना. जब हमें गर्मी कब लगती है? जब धूप होता है. Yes or no? और धूप को हम क्या कहते हैं? Sunny. So when it is very hot and sun is shining very brightly, it is sunny. Okay. So today it is sunny day. Okay. Now read the second question. Now what is the second question asking you? If you are going out, you should carry an umbrella or wear a raincoat. It is a dash weather. Now see, आप अम्ब्रेला या रेनकोट कब पहनते हो? जब बारिश होती है. Yes or no? Yes, when it is raining. Now look here, look at this picture. You can see very dark clouds. The sky is black, not blue. Yes or no? Yes. And आप देख रहे हो यहाँ बारिश हो रही है बहुत सारी. Yes. What can you see here? See, in this you can see the clouds. Yes, dark blue clouds, very big clouds. Okay, just you can see the clouds. Yes, these are our clouds, dark clouds. And then you can see pitter patter raindrops. Yes, yes. Which season is this? See, this is raining. Yes, this is raining. So which season is this? If you are going out, you should carry an umbrella and wear a raincoat. So let's draw a umbrella here. This is our umbrella. Yes, should we color it? So here, this is our umbrella. So which season is this? What weather is today? Today is rainy weather. Okay. So this is a rainy weather. See here, this is rainy. Yes or no? Yes. So how will you write rainy? R-A-I-N-Y. It is rainy weather today. ठीक है. तो हम रेनी सीजन में या फिर जो बहुत बारिश हो रही है, when the weather is rainy, what do we carry? We carry an umbrella or we wear a
raincoat. So if you're going out, if the weather report says that if you are going out, you should carry an umbrella or wear a raincoat. That means the weather. How is the weather today? It is rainy, यानी बरसात हो रही है. Very good. Now see. Read the third weather report. Okay. Now we will read the third weather report. Now what is happening here? Ask your father to drive carefully. He might not be able to see vehicles clearly because of the dash weather. Now what is happening here? Look at this picture. आपको यहाँ पे सारा धुंधला धुंधला दिख रहा है कि नहीं? Yes, it is very foggy. Now जब आप याद करो, जब आप विंटर में होते हो, जो विंटर में when R is very see इस तरह से, कैन यू सी? नाउ यू कैन नॉट सी एनीथिंग. सब कुछ आपको धुआं धुआं सा दिख रहा है ना, वाइट वाइट. सी नाउ व्हाट डज द वेदर रिपोर्ट सेज? द वेदर रिपोर्ट से आस्क योर फादर टू ड्राइव केयरफुली. ही माइट नॉट बी एबल टू सी व्हीकल्स क्लियरली बिकॉज ऑफ डैश वेदर. ऐसे आप कौन से सीजन में देखते हो? विंटर सीजन में, व्हेन इट इज फॉगी एवरीवेयर. यस और नो? यस. सो नाउ So ask your father to drive carefully. He might not be able to see vehicle clearly. जैसे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा था जब टीचर ने वाइट फ्लेम ऊपर कर दी थी. Yes. So which season is how the weather is? The weather is foggy. Okay. जो foggy weather होता है, you are not able to see anything clearly. Okay. During the foggy weather. See in this picture, आपको सब कुछ धुंधला दिख रहा है. Yes, at this time we should drive very carefully. क्यों? क्योंकि हमें सामने कोई जो आ रहा है वो नहीं दिखता. ठीक है. So which is that weather where you cannot see very clearly? That is the foggy weather. यानी हर जगह क्या होता है? Fog होता है. Okay. Now children, read the next question. Now what is the next question? Look here. It is dash today. It is a good idea to wear a sweater and a pair of warm socks before going outside. Now if you see in this picture the beautiful clouds and you have the snowflakes. Now let's see if we can draw the snowflakes. See, there are white clouds. We will color those clouds. Yes. So what is happening here? There is no sun. Okay. Sun nahi hai. There are white clouds. See, you can see with the hint of blue. We will put the blue also. Okay. These are our clouds. Now what is happening here? These are small flakes. Okay. So what is happening here? Yes. So see, look here. Now it is cold today. Okay. Now what is happening here? ये क्या हो रहा है? Cold today. It is very good. है जब cold होता है तो आप क्या करते हो? You will wear a sweater and a pair of warm clothes. Yes or no? Yes. So it is cold today. So it is a very good idea to wear a sweater and pair of warm socks before going outside. तो विंटर में हम क्या करते हैं? मम्मी आपको क्या देती है? स्वेटर देती है, सॉक्स देती है, सो दैट यू फील वार्म और आपको ठंडी ना लगे. ओके. देन नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. होल्ड योर कैप टाइट or it may fly away in this dash weather. Now see, what is the question asking you? यहाँ पे देखिए, पिक्चर देखिए, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है. जो पेड़ हैं वो एक तरफ जा रहे हैं एंड यू कैन सी द क्लाउड्स आर ऑल्सो मूविंग. यस, ये कैसा वेदर है? ये है विंडी वेदर, यानी हवाएं जो हैं बहुत ही तेज़ चल रही हैं. जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो वो कौन सा वेदर हो जाता है? इट इज़ अ विंडी वेदर. सो होल्ड योर कैप टाइट, वरना आपकी कैप भी उड़ जाएगी. तो ये कैसा वेदर है?
windy weather. Okay, so we will now read all the 5 questions again. Okay, now let's see. The first is, it is very hot today as the sun is shining brightly. It is which, how it is dash day today, it is which day today? It is the sunny day today. Okay, now read the second question. If you are going out, you should carry an umbrella or wear a raincoat. It is rainy today. Okay, now read the third question. Ask your father to drive carefully. He might not be able to see vehicles clearly because of the dash weather, foggy weather. In foggy weather, you cannot see things very clearly. Now read the fourth question. It is dash today. Now, कैसा season है? When it is a good idea to wear a sweater and a pair of warm socks before going outside. It is cold today. Okay. Now fifth. Hold your caps tight or it may fly away in this windy weather. Okay. So we will stop. We will finish this chapter and then we will turn to page number 14. Okay. The page number 14. Today we will learn about the interesting bugs. Now the first bug here. See, can you see a pretty little bug which is red in color? Yes. This bug name is ladybug. ये जो ladybug है, these are very short legs. Okay, इनके छोटे छोटे पैर होते हैं और इनके जो है bright color, they are usually bright colored with black and yellow and reddish marking. They live only for 4 weeks. They are used by farmers to control pest. यानी ये किसकी हेल्प करती हैं लेडीबग? लेडीबग जो है फार्मर की हेल्प करती हैं. और ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसे रेड कलर में होते हैं. सी कैसा होता है लेडीबग? इफ यू सी द लेडीबग, इट इज इन रेड कलर. Okay, and sometimes it has bright yellow or black or reddish marking. Okay, so we will put here okay, this is a ladybug. We will make this is a ladybug. Okay, so ladybug किसकी हेल्प करते हैं? ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव इज ऑफ अ स्पाइडर. यस, इट इज ऑफ स्पाइडर एंड स्पाइडर हैज हाउ मेनी लेग्स? 8 लेग्स. स्पाइडर के पास कितने लेग्स हैं? 8 लेग्स. ओके, एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, दे हैव हाउ मेनी लेग्स? दे हैव 8 लेग्स. दे मेक सिल्क वेब्स टू कैच द अदर इंसेक्ट्स. नाउ इफ यू रिमेंबर, जो मकड़ी है, स्पाइडर यानी मकड़ी, और वो क्या करती हैं? वो अपना वेब बनाती हैं. तो उनका वेब कैसा होता है? यस, यस और नो? स्पाइडर मेक्स वेब, और ये उनका वेब होता है. यहाँ पे वो क्या करती हैं? सिल्क वेब में वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती हैं, वो पकड़ लेती हैं इस वेब में. ओके, एंड दे लिव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. यानी आपको हर जगह मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में आपको स्पाइडर्स नहीं मिलेंगे. इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, इसीलिए वहाँ पे आपको स्पाइडर्स नहीं मिलेंगे. अंडरस्टूड? चलो, now we will read the next picture. Now which is the next insect? These are bugs. So which is the next bug? This bug is dragonfly. Okay, now dragonfly usually live near the fresh water. जहाँ साफ पानी होता है वहाँ पर आपको dragonflies दिखने को मिल जाएगी. They have long and strong bodies of diverse colors. यानी आपको अलग अलग कलर्स में उनकी बॉडी जो है आप देखेंगे बहुत ही लॉन्ग होती है. एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे ऑल्सो हैव ह्यूज आइज. उनकी आँखें जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. यस, यस. एंड दे आर नोन फॉर देयर स्विफ्ट मूवमेंट. काफ़ी स्मूथली ये मूव करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो अमॉन्ग दी फास्टेस्ट इंसेक्ट्स. ये ड्रैगन फ्लाई जो है, दीज आर fastest
insects. Okay. Now we will read the next insect. Now which is the next insect? Grasshoppers. Grasshoppers usually jump or crawl. तो ये या तो jump करेंगे या फिर ये crawl करेंगे. But most kinds can fly, यानी और कुछ grasshoppers can also fly. Most grasshoppers eat only plants. यानी ये क्या खाते हैं grasshoppers? ये plants खाते हैं. Some kinds move in large groups and destroy farmers' crop. यानी कुछ ऐसे grasshoppers होते हैं जो बहुत ग्रुप में जाते हैं और farmers के crops destroy कर जाते हैं. जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा टिड्डे जो बहुत सारे आए थे. Yes. और उन्होंने बहुत सारे crops destroy कर दिए थे. Yes or no? Yes. Very nice. Now read the next. They have antenna on their head. यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये क्या है? ये एंटीना है. See here. You can look here. These are their antennas. ये जो है ना लंबे लंबे से, ये क्या है? उनके एंटीनास हैं. तो यहाँ पे क्या है? They use to touch and smell. यानी ये जो एंटीनास है इससे ये क्या करते हैं? ये टच करते हैं, ये स्मेल करते हैं. So and they also have special eyes that allow them to see in all directions at once. यानी इनकी जो आँखें होती हैं वो बड़ी ही स्पेशल होती हैं. ये एक ही टाइम पे हर जगह देख सकते हैं. जैसे हम सिर्फ सामने देख सकते हैं लेकिन पीछे हम नहीं देख सकते. लेकिन ग्रासहॉपर्स सामने भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं. ओके. यस. So these are the grasshoppers. Now what you have learned? You have learned ladybugs. Then you have learned about spiders. Spiders have 8 legs. Okay. And dragonfly, ladybugs have short legs. Then you have learned about dragonflies. These are among the fastest insects. Okay. And they have a long body. Then you have grasshoppers. Okay. Now we will go to the next page. That is the page number 15. Okay. So we will learn about mosquitoes now. Mosquitoes are responsible for spreading disease like yellow fever, dengue and malaria. Now look here. Can you see a mosquito? Yes. Mosquito क्या करता है? हमारा blood पी जाता है. Yes or no? और ये बहुत सारी disease भी spread करता है जैसे yellow fever, dengue and malaria. It is the female mosquito's mouth part that cause us itching and irritation. Now see, हमें female mosquito bite करती है, male mosquito do not bite. यानी male mosquitoes जो होते हैं वो हमें bite नहीं करते हैं, लेकिन जो female mosquitoes होती हैं, जो female मच्छर होती हैं वो हमें काटती हैं, जिससे हमें irritation होता है और itching होती है. Itching यानी खुजली होती है. Yes or no? Yes. इसीलिए जब मम्मी कहती कि बेटा हाथ पैर धो के पूरे कपड़े पहनो, शॉर्ट्स मत पहनो क्योंकि मच्छर काट लेगा, हमें मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए. Yes or no? Yes. Now we will learn about the termites. Now see, can you see this picture? Yes, these looks like ant, but ये ant जो होते हैं black color में होते हैं. Yes, लेकिन ये कौन से कलर में है? white color में. इसीलिए termites को हम white ants भी कहते हैं. ठीक है. But compared to ants, they have softer bodies and lighter colors. यानी ant की body hard होती है, but termite की body soft होती है. And they are in lighter color. जैसे आप देख रहे हो white color में है. They feed on dead plants, trees and wood. ये क्या खाते हैं? wood खाते हैं. और ये जो termites है वो हमारे buildings को, furniture को, crops को और forest को destroy कर देते हैं. ये उनको बर्बाद कर देते हैं, ये उनको खा जाते हैं. ओके. सो इसीलिए टर्माइट्स जो होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए. यस और नो? यस. क्यों? क्योंकि ये वुडन चीज़ें खा जाते हैं, ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देते हैं, ये क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं. ओके. नाउ वी विल लर्न अबाउट लाइस. नाउ व्हाट आर दीज लाइस? नाउ लाइस आर जनरली ऑफ 2 मेन टाइप्स. ठीक है. 2 होती हैं, एक च्यूइंग और बाइटिंग लाइस और दूसरी सकिंग लाइस. ओके. एक जो हमें काट लेती है और दूसरा जो हमारा खून पीती है. ओके. विच ड्रिंक ब्लड.
और दूसरा जो हमें काटती है। दे ग्रो ऑन ह्यूमन स्कैल्प, यानी ये हमारे सर पे ग्रो करती हैं, आईब्रो पे और आई लैशेस पे। ओके, तो ये 3 जगह आपको मिलेंगी, सर पे दैट इज ह्यूमन स्कैल्प, आईब्रोज जो आपको पता है, देन दे आर आई लैशेस, देन दीज आर आई लैशेस। दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, ये क्या पीते हैं, मॉस्किटो की तरह ये हमारा ब्लड पीती है। एंड देयर बाइट कॉज इचिंग, यानी उनकी बाइट से हमें, जब वो काट लेते हैं हमें, तो वो क्या होता है, हमें खुजली होता है। एन एडल्ट लाउस कैन लिव ऑन अ पर्सन हेड अप टू अ मंथ, यानी जो बड़ा लाउस है, यानी जो बड़ी लाइस है जो हमारे सर पे रहती है, वो कम से कम 1 महीना हमारे सर पे रहती है, जो हमें बाइट करती है। ओके, now we have finished this. Now we will learn about see. Can you see here? Most insects have antenna. See, these are the antenna. जो ऊपर ऐसे जो फिलर्स टाइप के होते हैं वो है एंटीना, और वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको स्मेल और थिंग्स को फील करने के लिए। ओके, नाउ लुक एट दिस, कैन यू सी दिस पिक्चर? ये क्या है, ये चींटियाँ हैं, दीज आर एंट्स, सो यू विल राइट एंट्स। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. The next picture is of caterpillar. So here is the caterpillar. So you will write caterpillar. ठीक है, caterpillar फिर बाद में बड़ी होकर क्या बन जाती है, बटरफ्लाई. ओके, caterpillar बड़ी होकर क्या बन जाती है, बटरफ्लाई. Now look at the next picture. What is the next picture? The next picture is of cockroach. Yes, the next picture is of cockroach. You will write cockroach here. Okay, now look at the next picture. The next picture आप देखेंगे, ये जो बी है ये फ्लावर के ऊपर है. यस, ये फ्लावर से क्या लेती है, उनका फ्लावर का रस ले लेती है, फ्लावर का जूस ले लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर. और उससे क्या बनाती है वो नेक्टर से, हनी बनाती है. तो ये कौन सी बी हुई, दिस इज अ हनी बी. ओके, यस, वेरी गुड. Now what did we learn today? We learned about ants, caterpillars, cockroaches, honeybee, then lice, termites, mosquitoes, and we learned about ladybugs, spiders, grasshoppers, and dragonflies. Okay, now we will go to the next chapter. Okay, this is page number 16. Okay, so we will learn about the green plants. Now, without plants we would have no air to breathe. They are our green friends. यानी अगर प्लांट्स नहीं हुए तो हमें एयर नहीं मिलेगा. प्लांट्स हमें क्या देती हैं, एयर देती हैं, हमें ऑक्सीजन देती हैं, हमें एयर देती है. जो हम सांस लेते हैं वो हवा हमें कौन देता है, वो हमें हवा हमें प्लांट्स देता है. ठीक है, तो प्लांट्स हमें क्या देता है, व्हाट डज प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन. ओके, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, एयर देते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं. अगर हम सांस नहीं ले पाए तो तबीयत हमारी खराब हो जाएगी ना. यस, सो प्लांट्स हमें क्या देते हैं बेटा, एयर देते हैं. ओके, सो दीज आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे क्या हैं, प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स. ओके, नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स. काउंटिंग द ट्रंक रिंग्स ऑफ अ ट्री विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द ट्रीज. आप ये देख रहे हो जो सर्कल सर्कल है इस रिंग के अंदर. यस, अगर आप ये रिंग्स काउंट करोगे तो आपको ट्री की एज पता चल जाएगी. अगर 10 रिंग्स है तो ट्री इज 10 ईयर ओल्ड. 20 रिंग्स है तो ट्री इज 20 years old. ओके, सो जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे प्लांट के ट्रंक में उतने ही वो ईयर्स का होगा. ओके, सो सी, कैन यू सी दिस? यस, सो हियर the age of the tree. Okay, so the counting the trunk or rings of a tree will help you to find out the age of the tree. Okay, now we will read the next question. Now what is the next question? Dash is a sweet liquid that
flowers produce to attract इंसेक्ट्स। अभी टीचर ने पहले ही बताया था, जब आप हनी बी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हनी बी क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर ले लेती है जिससे वो हनी बनाती है। यस और नो? सो नेक्टर कैसा होता है, नेक्टर का टेक्सचर कैसा होता है, स्वीट लिक्विड सा होता है, जो इंसेक्ट्स उसे पीने की कोशिश करते हैं या पीते हैं। ओके, सो उसको हम क्या कहेंगे, नेक्टर। ओके, सो नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस टू अट्रैक्ट insects. Okay, so write your nectar, nectar. Okay, nectar. Now we will read the next question. Is tomato a vegetable or fruit? Tomato क्या है, tomato is a fruit. Okay, tomato क्या है, tomato is a fruit. How will you write fruit? F-R-U-I-T, fruit. Tomato is a fruit. Okay, now read the fourth question. Now what is the fourth question here? The flowers comes from the dash part of a plant. Flowers कहाँ से, fruit जो है, sorry, the fruit comes from the dash part of the plant. जो fruits है हमारे, वो कौन से पार्ट से आते हैं, तो बेटा वो आते हैं फ्लावर से। हमें फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर से मिलते हैं। पहले प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स देते हैं, फिर वो फ्लावर्स धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। तो फ्रूट कम्स फ्रॉम दी flowers of the plant. Okay, yes, very nice. Now we will read the next question. Dash gives the plant support and distribute water and minerals within the plant. अब देखो बेटा, dash gives the plant support. प्लांट को सपोर्ट कौन देता है, इफ़ यू रिमेंबर द ट्री वेरी क्लियरली, अगर आप देखेंगे तो सी, जो प्लांट खड़ा होता है अपने ट्रंक पे यानी अपने स्टेम पे खड़ा होता है, इस तरह से प्लांट होता है। यस और नो? और फिर आते हैं हमारे लीव्स। यस, दीज आर आवर लीव्स। तो सी, प्लांट्स को जो जितने भी लीव्स हैं उनको सपोर्ट कौन दे रहा है बेटा, स्टेम दे रहा है कि नहीं। ये जो ब्लैक कलर का जो स्टेम है, जो टीचर ब्राउन कलर का होता है, बट ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेम है जो प्लांट को सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ से जो वाटर और जो मिनरल जाता है वो स्टेम की हेल्प से लीफ के पास जाता है। यस और नो? सी, इस तरह से ऐसे यहाँ से जाएगा एंड स्लोली स्लोली सारे प्लांट्स के पास जाएगा। सो कौन देता है ये सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर और मिनरल, तो वो स्टेम करता है। ओके, सो द स्टेम गिव्स प्लांट सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर एंड मिनरल्स विद इन द प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर सारे स्टेम जो है हेल्प करता है, प्लांट को सपोर्ट भी देता है और वाटर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, यस। नाउ ड्यूरिंग द डे द प्लांट्स गिव आउट। अब ड्यूरिंग द डे प्लांट क्या देता है, टीचर ने पहले ही बताया, जो हम सांस लेते हैं वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग द डे द प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। हियर इज द ऑक्सीजन। सो ड्यूरिंग द डे द प्लांट गिव्स अस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, OXYGEN. The plant gives us oxygen. Okay. Now we will read the next question. Now what is the next question here? Dash absorb water and mineral from the soil. अब यहाँ पे बेटा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्री, ठीक है। ये है आपका ट्री, आपको पता है ये स्टेम है उसके। ये है आपका ट्री। ट्री से पहले हमें पता है कि हमें रूट्स भी होते हैं ट्री के। यस, ये रूट्स हो गए जो ज़मीन के अंदर होते हैं। यस और नो? ये हमारी ज़मीन है, इसके नीचे क्या होता है, ट्री के रूट्स होते हैं।
और फिर ऊपर हमारे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे सारी लीव्स होती हैं, यस और नो? यस। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से वाटर और मिनरल जो भी रूट कलेक्ट करेगा वो सारा स्टेम के पास जाएगा, यस और नो? तो रूट पहले सारा अब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद रूट जो है वो स्टेम को देगा, फिर स्टेम जो है सारे लीव्स को देगा। ओके, सो जो सॉइल से जितना भी अब्जॉर्ब करना है वो कौन अब्जॉर्ब करेगा? रूट्स करेगा, जो सॉइल के अंदर है। सॉइल के अंदर क्या है? रूट्स है, स्टेम थोड़ी ना है। रूट्स है तो रूट्स क्या करेगा? वो सॉइल से सारा वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, so dash absorbs water and mineral from the soil. The answer is root. Okay, very nice. Where is root? Here. So we will stop here for today. Thank you children. Have a great day.